Hello, good morning, students. Once again, be back to the lesson of Evelyn. Now we are going to move in the next point, point number 4. What is she trying to say? She says that she never looked back. In sense, the author is giving the information regarding her. She never looked back or turned back from that point onwards. The day she started involving herself in the complete world of music, here the writer says she never looked back. Means she never turned back and find that there are many obstacles and she will not do this. And from that point onwards, she continued her all the efforts. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. Now she started going, especially in the different countries such as United Kingdom, with her youth orchestra group. And by the time she was 16, when she became a 16 years old child, she had decided to make music her life. That was the final destination where she is trying to say that she has taken the decision to make the music as her own life only. Music is life and life is music. This was the motto or the situation she has created. She auditioned beside the page. You can see audition means gave a short performances so that the director could decide whether she was good enough for the music or not, or for the orchestra or not. So she auditioned for the Royal Academy of Music. She went for the audition, especially in the Royal Academy of Music, and scored one of the highest marks in the history of the academy. That was a record breaking special process made by Evelyn. It was the it was for the first time in the history of the academy that nobody has scored such a highest marks till now. She gradually moved from orchestral work to the solo performances. Now, after step by step, gradually you can say, started moving herself alone, solo. Lonely performances were given by her, and now from orchestral work, she is giving her performances alone. At the end of her 3-year course, means from year 16 to 17, 18, 19, she had captured most of the top awards of the country. Even from the world, she received many top awards for her music. A deaf girl receiving such top awards means it's a great achievement. Now, moving the point number 5, you can see, and for all this, whatever she has worked hard to achieve all these things, you can say for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. Evelyn did not like one thing, to accept the appreciation or the hint of heroic achievements. हेरोइक अचीवमेंट्स मतलब हीरो के जैसे अचीवमेंट्स। तो ऐसे ऊंचाई पर जाने के बाद जो एवेलिन को हिंट मिलती थी, लोगों से प्रशंसा मिलती थी, शी डिड नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट ऑल दोस थिंग्स. शी ओनली रिप्लाइड दैट इफ यू वर्क हार्ड and know where you are going, you shall or you will get there. She has given one important factor of her life, how to live the life. You work hard, and if you work hard, and if you are knowing properly that in which direction you are going, you will get or you will reach your destination. And now she got right to the top in this way. The world's most sought after, one who seeks, one who gets, one who receives, one who extracts. After multi percussionist, a person who is able to or capable of playing different musical instruments at a time, that is called as a multi percussionist with a mastery of some thousand instruments. She has mastered, she has uh, taken such kind of a guideline that she is able to play different thousands of instruments in the different, yes, manner. And hectic international schedule, hectic, which is quite full of international type of a timetable. Hectic, giving lot of burden on her shoulders, or which is creating type of a, yes, lot of burden on someone. That is called as a hectic kind of a, means quite busy one, you can say. The meaning of the word hectic, one who is quite busy in something at the international level. She is having her fixed schedule. It is intriguing to watch. Intriguing means fascinating and curious.
you are very attractive to listen to such kind of a person. To watch Evelyn function so effortlessly without hearing. When she plays music and when somebody looks at her, it is quite attractive to see Evelyn trying to play all the musical instruments in a effortless manner, not taking lot of efforts. Means in a simple way she is trying to play all the musical instruments, and that too without listening or hearing the sounds. In our 2 hour discussion, there was a discussion between Evelyn and percussionist. What is the percussionist trying to say here? In our 2 hour discussion, she never missed a word. Whatever I was trying to tell her, she understood every word, though she was unable to listen. And then she laughs with a kind of a, yes, a mocking process. एक मजाक भरा अंदाज में वो हंस पड़ती है कि men with the bushy beards give me trouble. जितने भी दाढ़ी वाले इंसान है ये मुझसे बड़ी कड़ी मेहनत करवाते हैं यार, बहुत मुझसे, यस, तकलीफ भरा अंदाज सहन करवाते हैं. And now she laughed in the way it is not just watching the lips. When you understand someone, it is not so easy just to watch the lips. It's the whole face. You have to observe the whole face of the person where you can understand what is she trying to, yes, study out of the face, especially the eyes. Means when you see her, it is not only the lips she is observing. You need to observe the whole face of someone, especially when she is studying something from others. जब एवेलिन दूसरों के चेहरे से कुछ पढ़ती है तो सिर्फ वो लिप्स को नहीं देखती है बल्कि पूरा चेहरा देखती है, खास करके उसकी आंखें सब कुछ पढ़ रही हो ऐसे लगता है. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक. कोई भी गलती या कोई भी यस फॉल्ट उसके अंदर होता नहीं है. जब वो बोलती है तो फ्लॉलेसली बोलती है विद अ स्कॉटिश लिल्ट. लिल्टिंग मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टोन. स्कॉटिश टाइप का टोन उसके अंदर मिक्स हो जाता है. ओके, तो ये बात बहुत जरूरी है. देन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू से दैट इज she speaks flawlessly with a Scottish lilt. When she speaks, she is trying to mix up the Scottish type of a tone. My speech is clear because I could hear till I was 11. मेरी स्पीच एकदम क्लियर है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक सुन पाती थी और इसलिए मुझे ये सब चीजें आसानी से पता चलती है, ऐसा वो कहती है. She says, but that doesn't explain how she managed to. That doesn't explains how she managed to learn French and master the basic Japanese. इसे ये नहीं पता चलता है कि किस तरह से उसने सिर्फ स्कॉटिश नहीं बल्कि फ्रेंच और यहाँ तक कि जापानीज लैंग्वेज का जो बेसिक आइडिया है उसको कैसे उसने सीख लिया. In the point number 7, we understand that as far music is concerned, she says, what does she say? She says, as for music, it pours in through every part of my body. म्यूजिक मेरे शरीर के हर हिस्से में जैसे पूरी तरह से समा जाता हो. It tingles. It causes a slight pricking or stinging sensation. गुदगुदाहट होना या गुदगुदी होना. It tingles in the skin. It is producing a kind of a tingling type of a sound in the skin. My cheekbones also. मेरे स्किन के साथ साथ मेरे गालों में भी, उसके बोन्स में भी मुझे ये सब चीजें महसूस होती हैं. एंड इवन इन माय हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी. When she plays the xylophone, when she is trying to play the musical instrument called as a xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो म्यूजिक प्ले कर दी तो उसके पास जो लकड़ी होती है जो बजाने के लिए यूज होती है उसमें से वाइब्रेशंस पास होते हैं. एंड दैट स्टिक passes the vibrations up to her fingertips. By leaning against the drums, when she bends down, when she is leaning towards the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances, echoing sound of the music. तो वो जो echoing sound है म्यूजिक का जो वापस
बजाने के बाद जो बजता है, बजाने के बाद जब साउंड बजता है तो उसको एक्कोइंग साउंड कहते हैं। और वो साउंड वो क्या कहते हैं, जब वो झुकती है और झुककर इनको बजाती है तो उसकी रेजोनेंसेस वो अपने बॉडी से फ्लो होते हुए महसूस कर पाती है। देन one more important thing she says, on a wooden platform she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. When she is climbing on the stage and where it is a wooden platform, first of all she removes her shoes, like we remove our shoes or chappals or sandals before we enter the, yes, temples or important places or even our house also, so that the vibrations pass through her bare feet. तो बेयर फीट से वो वाइब्रेशंस उसके पैरों तक, ओके, पहुंचकर फीट से लेग्स तक पहुंच पाते हैं। देन इन द फर्दर पॉइंट नंबर 8, व्हाट डज शी से, नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवेलिन के अंदर वो खासियत है कि वो अपने ऑडियंसेस को बहुत खुश करा देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, यस, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड, ईयर अवार्ड उसको दिया गया था जब उसने 1991 में परफॉर्मेंस दी थी। और उस परफॉर्मेंस में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है उसकी तरफ से प्रेस्टिजियस टाइप का सोलोइस्ट का अवार्ड दिया गया था, खास करके ईयरली अवार्ड होता है, सेज। और ये सब आगे उसने खुद मेंशन किया है। फिर आगे और एक जन है, परक्यूशनिस्ट है, जो म्यूजिकल की दुनिया में एक माहिर व्यक्ति होता है, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड ने एवेलिन की प्रशंसा जब की थी तो वो क्या कहते हैं, एकदम शुरुआत में हमने जो पढ़ा लेसन के, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। भगवान ने भले ही एवेलिन से उसके कानों की कैपेसिटी छीन ली हो, लेकिन बदले में उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की कैपेसिटी दी हुई थी। जो हम सुनते हैं, what we hear, she feels, she realizes, and that to how much, far more deeply than any of us. जितना हम कॉमन ह्यूमन बींग्स या कॉमन जिनको सुनाई देता है नहीं सुन सकते, उतना डीपली उतना वो सुन पाती है या महसूस करती है। एंड दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। These are the beautiful lines said by one of the percussionist, okay, whose name is also mentioned there. What is the name? James Blades. In point number 9, एवेलिन कन्फेसेस, एवेलिन एक बात को स्वीकार करती है, कन्फेस करती है, दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। बस मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है। अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, वन हु इज एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू टू वर्क। बस जैसे किसी को पढ़ना 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 पढ़ते ही रहना पसंद है, वैसे उसको काम में मग्न रहना पसंद है। एंड देयरफॉर व्हाट डज शी से, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे जल्द से जल्द काम पे लग जाना चाहिए। ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वो काम जो मैं करने जा रहे हो वो काफी हार्ड होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? आज तक जितने क्लासिकल म्यूजिशियंस ने शायद जितनी मेहनत नहीं ली होगी उससे कई गुना ज्यादा मुझे लेनी है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन बदले में उसको जो मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं या शाबाशी जो मिलते हैं, तो वो बहुत बड़ी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो रेगुलर कंसर्ट्स के लिए, म्यूजिकल टाइप के शोज के लिए रेगुलरली तो जाती ही जाती है, लेकिन इसके अलावा एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवेलिन जाकर अपनी तरफ से प्रिजन्स में जाकर जो कैदी होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिना कोई अमाउंट लिए वहां पर लोगों को एंटरटेन करवाती है, ताकि प्रिजनर्स को अकेलापन महसूस ना हो। दे शुड नॉट फील लोनली और आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इवन इन द हॉस्पिटल्स व्हेन द पेशेंट्स आर लाइंग कंफर्टेबली, okay, on their beds with the help of the doctors, they feel comfortable because the music is played by Evelyn, and therefore she says she is trying to give or console or give a hope of ray to these prisoners as well as to the hospitals. Next, she also gives high priority, ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किसे देती है? टू क्लासेस स्पेशली विच आर कंडक्टेड बाय हर फॉर द यंग म्यूजिशियंस। जो यंग म्यूजिशियंस उसके पास सीखने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए वो सबसे पहले प्राधान्य देती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस वो उन्हें देती है।
प्रायोरिटी पहले उन बच्चों को दी जाती है जो यंग म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं। एंड रिचलिन नाम की जो कैरेक्टर है ऑफ द बेथोवन, बेथोवन नाम का जो स्पॉट है या जगह जो है, वहां पर एक फंड इकट्ठा की जाती है बेथोवन में, और वो कलेक्ट करने वाली व्यक्ति का नाम एन रिचलिन है, जो खास करके किसके लिए फंड इकट्ठा करती है? फॉर डेफ चिल्ड्रन। ओके, बहरे बच्चों के लिए खास करके ये फंड इकट्ठा किया जाता है। व्हाट डज शी से अबाउट दिस फंड? शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। वो एक कल की उभर के आने वाली एक चमकदार इंस्पायरिंग करने वाली यस लेडी है एवेलिन। खास करके ऐसी लेडी है जो इंस्पायर करती है उन बच्चों को जिनको भगवान ने बिल्कुल उसकी तरह डेफ बना के रखा है। खास करके डेफ बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी मिसाल है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बच्चे उससे इतना इंस्पायर हो जाते हैं दैट दे कैन सी दैट देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर दे कैन नॉट गो एंड परफॉर्म एंड शो देयर एबिलिटीज। वो ऐसी दुनिया की कोई जगह ही नहीं है कि जहां पर वो जा नहीं सकते। अगर एवेलिन जा सकती है इतनी ऊंचाई पर, तो हम भी जा सकते हैं। इतना इंस्पायर वो उन यंगस्टर्स को या उन डेफ बच्चों को करती है। Evelyn Glennie, point number last of your lesson. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. What are her achievements? Evelyn Glennie की achievements क्या है? She has already accomplished, achieve करना, उस मुकाम तक पहुंचना। ओके, जो आम तौर पे मोर देन, उससे भी ज्यादा उसने उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की है where most people twice her age have not achieved or accomplished the task. उसकी उम्र से दुगने, मतलब अगर वो 20 साल की है तो 40 साल का व्यक्ति भी आज तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया या उस चीज को एकम्प्लिश नहीं कर पाया जो आसानी से एवेलिन ग्लेनी ने आधी उम्र में ही करके बता दिया। जो उसकी उम्र के दुगने लोग भी नहीं पहुंच पाते लंबे अरसे के बाद, तो वो आसानी से कम उम्र में वो पहुंच गई थी। She has brought percussion to the front of the orchestra. ये वो लेडी है, she is the first lady you can say who has become percussionist like character. वो भी खुद एक माहिर बन चुकी थी, इसलिए वो percussionist की तरह बन गई थी। और उस percussionist के अंदर का percussion जो होता है, वो जिज्ञासा जो होती है, उसने ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में सबसे आगे लाने की सबसे पहले अगर कोशिश की थी तो वो एवेलिन ने की थी। मतलब ऑर्केस्ट्रा के अंदर आमतौर पे परक्यूशन नहीं होता था और ये काम उसने करके बताया था। ऑर्केस्ट्रा में परक्यूशन डाला, ऑर्केस्ट्रा के अंदर पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया और ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में एक न्यू म्यूजिकल रिकॉर्ड्स बनाया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और उसने प्रूफ करके बताया, डेमोन्स्ट्रेट करके बताया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और अगर आप ऑर्केस्ट्रा के अंदर परक्यूशन ऐड करते हो, अपने आप को पूरी तरह से ढाल देते हो, तो समझ लेना आपका परफॉर्मेंस एकदम मूविंग बन जाता है, लोगों को फा जाएगा या फिर लोगों को भावुक कर देगा या फिर और अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा परफॉर्मेंस बन जाता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो हमेशा से डेफ के अलावा उन लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग सोर्स बनी, जैसे हेलन केलर हुआ करती थी। हेलन केलर भी इंस्पायरिंग सोर्स थी। उसी तरह से एवेलिन ग्लेनी भी एक ऐसा इंस्पिरेशनल सोर्स बन गई जो खास करके हैंडीकैप बच्चों के लिए एक मिसाल बन गया। हैंडीकैप पीपल, स्पेशली हैंडीकैप स्टूडेंट्स और हैंडीकैप पीपल यू कैन से, उनके लिए एवेलिन से बहुत कुछ सीखने जैसा था। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग आज उस एवेलिन को जब देखते हैं और उसे जब ये कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, क्या कहते हैं लोग? अगर ये लड़की इतना कुछ ऊंचाई पर पहुंच सकती है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। अगर ये डेफ होकर इतनी ऊंचाई पर जा सकती है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकती है, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स अचीव कर सकती है, तो मैं तो साधारण हूं, मैं तो हैंडीकैप नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा हम सबको भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। एंड नॉट द लीस्ट, अब आखिरी बार, ओके, राइटर क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात वो कहना चाहते हैं, एंड नॉट द लिस्ट। एक्चुअली ये कोई लास्ट बात नहीं है, लेकिन फिर भी
शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। सबसे बड़ी बात, सिर्फ डेफ या हैंडीकैप के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि वो उन सब मिलियन लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक एनॉर्मस टाइप का, एक बहुत बड़े पैमाने में, एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, इन अ लार्ज क्वांटिटी, she has provided lot of pleasure to the millions of people in the world. This lesson is written by Deborah Cowley. Now, when you go through the text exercise, thinking about the text, there are some question answers given in 1, 2 and 3 sections. In that, answer these questions in a few words लिखा है पहले में, और a couple of sentences, 5-6 sentences में वो आंसर लिख सकते हैं, या 3-4 sentences में लिख सकते हैं. लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको, 30 to 40 वर्ड्स का. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट इन 6 to 7 लाइंस. बट द लास्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, जो ब्रीफ क्वेश्चन है, सबको कंपल्सरीली अपनी नोटबुक में पूरा करना ही है ये क्वेश्चंस. आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स. 2 या 3 पैराग्राफ में बड़ा आंसर होता है. ये कभी कभी 8 मार्क के लिए आता है, कभी 16 मार्क्स के लिए भी आता है. इन 100 to 150 वर्ड्स. क्वेश्चंस ध्यान से देखना, और अगर आपके पास कोई गाइड्स हैं या ऑनलाइन पे भी इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो प्लीज करके इनको कंप्लीट करना. नाउ in the part number 2, we are going to learn like Evelyn's lesson, the Shainai part 2, the Shainai of Bismillah Khan, in the next session, and then we'll move in the main exercise of your lesson. Before that, I am giving you a simple work. Try to guess who are these great people. बिस्मिल्लाह खान जैसे थे, शेनाई के सबसे बड़े माहिर थे, सबसे पावरफुल कैरेक्टर माने जाते हैं, जिनको भारत के सभी अवार्ड्स मिल चुके हैं. शायद आपको अगर पता नहीं तो बता दो. पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और यहाँ तक कि भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है. तो उसी तरह से, डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हो जो इन फोटोग्राफ्स में दिए हुए. और ये आपका एक एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, इट्स नॉट अ होमवर्क, इट्स अ एक्टिविटी टू बी डन इन अ डिफरेंट बुक. एक अलग से नोटबुक लेना है और वो एक्टिविटी की बुक में लिखना है आपको, वो भी उन पिक्चर्स को, यस, वहां पर कलरफुल पिक्चर्स को लगा देना है और उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है. हु आर दिस पीपल, और बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है लिखना है. ये 8 लोगों का या 9 लोगों का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है. और एक साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले. वो तो आप डिस्क्रिप्शन जब लिखेंगे तो प्लीज करके फोटोग्राफ के साथ उनका डिस्क्रिप्शन लिखना. और आपकी अलग से नोटबुक बनानी, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, घर की नोटबुक भी चल सकती है, कोई भी नोटबुक चल सकती है, कलरफुल भी चल सकती है, लेकिन उसके ऊपर लिखना है इंग्लिश एक्टिविटी बुक कंपल्सरी, because the internal marks will be added for this activity book. Okay, bye all of you, see you soon in the next session. Hope that you will try to complete your homework which is allotted to you. Thank you, have a nice day all of you.